एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की इंग्लिश बुक से पोएम ए डॉग नेम्ड ड्यूक के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। Chuck was going great guns before he faced a major setback. How did his life change all of a sudden? चक पहले बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसकी जिंदगी अचानक कैसे बदल गई? आंसर: Chuck's life changed dramatically and suddenly due to a serious accident. Chuck suffered a subdural hemorrhage, which paralyzed his left side completely. This injury led to a lot of emotional and physical distress. Chuck previously is described as a physically active and successful individual, but after the accident, he became physically dependent on others for basic tasks like walking and standing. चक की जिंदगी एक गंभीर दुर्घटना के कारण अचानक और नाटकीय रूप से बदल गई। उसे सबड्यूरल हेमरेज, मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ, जिससे उसका बायां हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। इस चोट ने उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफ दी। पहले चक एक शारीरिक रूप से सक्रिय और सफल इंसान था, लेकिन इस हादसे के बाद वह दूसरों पर निर्भर हो गया, यहां तक कि चलने और खड़े होने के लिए भी। क्वेश्चन 2। What did the men who came to see Chuck in the hospital say to him? चक को देखने के लिए जो लोग अस्पताल आए थे, उन्होंने उससे क्या कहा? Answer: The men expressed their concern and acknowledged the seriousness of Chuck's condition and its impact on his life. The men who came to see Chuck in the hospital asked him to take a year long leave from work and told him that they would create a new desk job for him at the company headquarters. जो लोग चक को अस्पताल में देखने आए थे, उन्होंने उसकी हालत की गंभीरता को समझते हुए चिंता व्यक्त की। उन्होंने चक से कहा कि वह 1 साल की छुट्टी ले ले और उन्होंने उसे बताया कि कंपनी के मुख्यालय में उसके लिए एक नया डेस्क जॉब तैयार करेंगे। क्वेश्चन 3। हाउ डिड ड्यूक डाई? ड्यूक की मौत कैसे हुई? आंसर: ड्यूक met with a road accident. Later he was taken to a hospital where he succumbed to his injuries. ड्यूक की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसने अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया। Question 4. Were the Hooper's new neighbors aware of the story of Duke and Chuck? What did they see every day? क्या हुपर के नए पड़ोसी ड्यूक और चक की कहानी के बारे में जानते थे? वे हर दिन क्या देखते थे? आंसर: No, the people who stayed around the new house where the Hoopers shifted later did not know the story of Duke and his master. Chuck and Duke remained close companions. The neighbors would see them taking walks, playing in the yard, and simply enjoying each other's company. Duke, strong and energetic, would often pull Chuck along for their daily walks. This sight, without context, could have led the neighbors to believe that Duke was dominant and owned Chuck. नहीं, जब हूपर परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ तो उनके पड़ोसी ड्यूक और चक की कहानी के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन चक और ड्यूक एक दूसरे के बहुत करीबी साथी थे। पड़ोसी रोज देखते थे कि चक और ड्यूक साथ में टहलते हैं, आंगन में खेलते हैं और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। ड्यूक, जो ताकतवर और ऊर्जावान था, अक्सर चक को अपनी सैर के दौरान खींचता हुआ ले जाता था। बिना पूरी कहानी जाने पड़ोसी सोच सकते थे कि ड्यूक चक का मालिक है और उसे नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 5. When Duke was brought inside the house after he had met with an accident, Marcy observed something. What did she notice? जब ड्यूक का एक्सीडेंट हुआ और उसे घर लाया गया, तो मार्सी ने क्या देखा? आंसर: When Duke was brought inside the house after his accident, Marcy noticed that the stubbornness in his eyes was gone. This observation signifies a change in Duke's demeanor. Previously, Duke might have been known for a strong, independent spirit, which could be interpreted as stubbornness. However, after the accident, his eyes laced the stubbornness. This shift in his gaze highlights the impact of the accident. Marcy's keen observation hints at the depth of her understanding of Duke. She is quick to notice subtle changes, revealing a level of sensitivity and empathy towards her beloved dog. जब ड्यूक का एक्सीडेंट हुआ और उसे घर लाया गया, तो मार्सी ने देखा कि उसकी आंखों में जिद अब नहीं थी। यह दिखाता है कि ड्यूक के स्वभाव में बदलाव आया था। पहले ड्यूक को उसके मजबूत और स्वतंत्र स्वभाव के लिए जाना जाता था, जिसे लोग जिद्दी मान सकते थे। लेकिन हादसे के बाद उसकी आंखों में वह जिद नहीं थी। यह बदलाव उसके एक्सीडेंट के प्रभाव को दर्शाता है। मार्सी की यह छोटी सी बात देखने की क्षमता दिखाती है कि वह अपने प्यारे कुत्ते को कितनी गहराई से समझती थी।
उसने ड्यूक में बदलाव को जल्दी ही महसूस कर लिया, जिससे उसकी संवेदनशीलता और उसके प्रति सहानुभूति का पता चलता है। क्वेश्चन 6, व्हेन ड्यूक सॉ हिज मास्टर ऑन रिटर्निंग फ्रॉम द केनल, व्हाट डिड ही डू? जब ड्यूक ने केनल से लौटकर अपने मालिक को देखा तो उसने क्या किया? आंसर: When Duke saw his master, he was overwhelmed with joy and excitement. He let out a loud yell, dug his claws into the ground, and launched himself in a 3-meter jump, landing right on Chuck. जब ड्यूक ने अपने मालिक को देखा तो वह बहुत खुश और उत्साहित हो गया। उसने जोर से एक आवाज निकाली, अपने पंजों को जमीन में गाड़ा और लगभग 3 मीटर की छलांग लगाकर सीधा चक पर कूद गया। क्वेश्चन 7, हाउ डिड ड्यूक्स मास्टर रिएक्ट एंड व्हाट डिड दोज स्टैंडिंग देयर ऑब्जर्व? ड्यूक के मालिक ने कैसी प्रतिक्रिया दी और वहां खड़े लोगों ने क्या देखा? आंसर: Chuck was still weak and recovering from his accident. He struggled to keep his balance and nearly fell under the weight of his enthusiastic dog. Those standing there watched in astonishment, immediately realizing the depth of the bond between the dog and his master. चक अभी भी कमजोर था और अपने हादसे से उबर रहा था। वह अपने उत्साही कुत्ते के वजन के नीचे गिरने की स्थिति में आ गया। वहां खड़े लोग हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि ड्यूक और चक के बीच कितना गहरा रिश्ता था। What struck everyone the most was how Duke instantly understood the situation. He saw how his master wobbled and immediately knew that his usual playful behavior wasn't right. From that day on, Duke never jumped on Chuck again. He remained by his side constantly, offering comfort and support in his own unique way. सबसे खास बात यह थी कि ड्यूक ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उसने देखा कि उसका मालिक लड़खड़ा रहा है और तुरंत समझ गया कि उसकी पुरानी खेल भावना अब सही नहीं है। उस दिन के बाद से ड्यूक ने फिर कभी चक पर छलांग नहीं लगाई। वह हमेशा उसके पास रहता था, अपने अनोखे तरीके से उसे सहारा और आराम देता रहा। क्वेश्चन 8, इन 1950 हूपर वॉज अ फेवर्ड यंग मैन। हाउ एक्सप्लेन? 1950 में हूपर एक पसंदीदा युवा व्यक्ति कैसे था? समझाइए। आंसर: In the year 1950, Chuck Hooper was really going strong before he met with an accident. He was described as 6 feet 1, suggesting an imposing physical presence. His big, genuine grin suggests a friendly and approachable personality. His past involvement in university football further underscores athleticism and competitive spirit. He was all settled with his little blonde wife, Marcy, implying a fulfilling personal life. 1903 में चक हूपर एक सफल जीवन जी रहा था जब तक कि उसका हादसा नहीं हुआ। उसे 6 फीट 1 इंच लंबा बताया गया था, जिससे उसकी प्रभावशाली शारीरिक उपस्थिति का पता चलता है। उसकी बड़ी सच्ची मुस्कान उसकी दोस्ताना और मिलनसार व्यक्तित्व को दर्शाती थी। उसका विश्वविद्यालय के फुटबॉल में हिस्सा लेना उसकी खेल भावना और प्रतिस्पर्धात्मकता को दिखाता था। वह अपनी छोटी सुनहरे बालों वाली पत्नी मार्सी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। Hence, he represented an ideal image of a successful and happy young man in 1950s America. इसलिए 1970 के दशक के अमेरिका में वह एक सफल और खुशहाल युवा व्यक्ति की आदर्श छवि प्रस्तुत करता था। क्वेश्चन 9, Duke was an extraordinary dog. What special qualities did he exhibit to justify this? Discuss. ड्यूक एक असाधारण कुत्ता था। उसने कौन सी विशेष योग्यताएं दिखाई जो इसे साबित करती हैं? चर्चा कीजिए। आंसर: Duke was definitely a special dog. Duke exhibited a strong sense of empathy and compassion for Chuck. He could sense his master's pain and sadness, and he responded with comforting gestures like nuzzling and resting his head on Chuck's lap. This emotional connection was evident in their interactions, highlighting Duke's ability to understand and feel for his master beyond simply following commands. ड्यूक निश्चित रूप से एक खास कुत्ता था। उसने चक के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाई। वह अपने मालिक के दर्द और उदासी को महसूस कर सकता था और उसे दिलासा देने के लिए उसके पास बैठकर उसके पैरों पर सिर रख देता था। यह भावनात्मक जुड़ाव उनके संबंधों में स्पष्ट था, जो दिखाता है कि ड्यूक सिर्फ आदेशों का पालन करने वाला कुत्ता नहीं था, बल्कि अपने मालिक को समझने और उसके साथ महसूस करने की क्षमता रखता था। Question 10. Chuck and Duke complemented each other very well.
चक ड्यूक एक दूसरे के पूरक थे? आंसर: both Chuck and Duke had great faith in each other. Duke's extraordinary nature arose from a unique combination of loyalty, intelligence, empathy, endurance, resilience, and adaptability. These qualities not only made him a beloved pet, but also a vital source of support and comfort for Chuck. He serves as a reminder of the profound bond that can exist between humans and animals, one that extends beyond obedience and training and is rooted in mutual love and understanding. चक और ड्यूक दोनों का एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। ड्यूक की असाधारण प्रकृति वफादारी, बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, सहन शक्ति, दृढ़ता और अनुकूलनशीलता के अद्वितीय संयोजन से उत्पन्न हुई थी। इन गुणों ने न केवल उसे एक प्रिय पालतू बनाया, बल्कि चक के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन और आराम का स्रोत भी। वह इस बात की याद दिलाता है कि इंसानों और जानवरों के बीच कितना गहरा संबंध हो सकता है, जो केवल आदेशों और प्रशिक्षण से परे होता है और आपसी प्रेम और समझ पर आधारित होता है। क्वेश्चन 11: What problems did Chuck present when he returned to the company headquarters? जब चक कंपनी मुख्यालय लौटा तो उसने कौन सी समस्याएं पेश की? आंसर: Chuck's accident left him unable to move around freely and limited his working capacity to only 1 hour a day. This significantly hampered his ability to fulfill his sales duties, which required mobility and longer work hours. चक के हादसे ने उसे स्वतंत्र रूप से चलने फिरने में असमर्थ बना दिया था और उसकी काम करने की क्षमता सिर्फ 1 घंटे तक सीमित हो गई थी। इससे उसकी सेल्स ड्यूटी, जो गतिशीलता और लंबे समय तक काम करने की मांग करती थी, बुरी तरह से प्रभावित हुई। क्वेश्चन 12: Why do you think Charles Hooper's appointment as Assistant National Sales Manager is considered to be a tribute to Duke? आपको क्यों लगता है कि चार्ल्स हुपर की असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर के रूप में नियुक्ति को ड्यूक को श्रद्धांजलि माना जाता है? आंसर: Charles Hooper's appointment as Assistant National Sales Manager is a tribute to Duke because it acknowledges the dog's vital role in Hooper's recovery, highlights the positive influence Duke had on his life, and serves as a symbol of the powerful bond they shared. चार्ल्स हुपर की असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर के रूप में नियुक्ति को ड्यूक को श्रद्धांजलि माना जाता है क्योंकि यह चक के ठीक होने में ड्यूक की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। यह दिखाती है कि ड्यूक ने चक के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाला और उनकी गहरी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम का प्रतीक है। क्वेश्चन 13: डिस्कस द एसेंस ऑफ द स्टोरी अ डॉग नेम्ड ड्यूक। अ डॉग नेम्ड ड्यूक कहानी का सार क्या है? आंसर: A dog named Duke is a heartwarming tale of resilience, hope, and the healing power of love. A dog named Duke एक दिल छू लेने वाली कहानी है जो संघर्ष, आशा और प्रेम की चमत्कारिक शक्ति को दर्शाती है। In A Dog Named Duke, we meet Chuck Hooper, a successful sales manager whose life is drastically altered by a devastating accident that leaves him partially paralyzed. Facing physical and emotional challenges, Chuck finds solace and support in his loyal dog, Duke. इस कहानी में हम चक हूपर से मिलते हैं जो एक सफल सेल्स मैनेजर है, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है और वह आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है। शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हुए चक को अपने वफादार कुत्ते ड्यूक से सुकून और सहारा मिलता है। ड्यूक्स अनवेवरिंग डिवोशन एंड इंटेलिजेंस प्रूव इंस्ट्रूमेंटल इन चक्स रिकवरी। थ्रू देयर डेली वॉक्स, चक regains physical strength and confidence. Despite his limitations, Chuck is determined to return to work. Recognizing his dedication, the company creates a desk job for him, allowing him to utilize his skills and contribute in a way that accommodates his physical condition. ड्यूक की अटूट निष्ठा और बुद्धिमानी चक के ठीक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके रोजाना की सैर से चक को शारीरिक ताकत और आत्मविश्वास वापस मिलता है। अपनी सीमाओं के बावजूद चक काम पर लौटने का संकल्प लेता है। उसकी लगन को देखते हुए कंपनी उसके लिए एक डेस्क जॉब तैयार करती है जिससे वह अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके और अपनी शारीरिक स्थिति के अनुरूप योगदान दे सके। Throughout the story, the profound bond between Chuck and Duke shines through.
Their mutual love and respect are evident in their interactions, demonstrating the unique and powerful connection that can exist between humans and animals. पूरी कहानी में चक और ड्यूक के बीच का गहरा रिश्ता उभर कर सामने आता है। उनकी आपसी प्रेम और सम्मान भरी बातचीत से यह दिखता है कि इंसानों और जानवरों के बीच कितना खास और मजबूत रिश्ता हो सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थे ए डॉग नेम्ड ड्यूक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।